السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 18 نومبر 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 15 جمادی اول 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ دہلی میں ایئر کوالٹی انڈیکس آج پیر کو گمبھیر سطح سے اوپر پہنچ گیا ہے، جس کے بعد CAQM نے آلودگی پر قابو پانے کے لیے آج پیر سے نئے گریف 4 قوانین کو نافذ کرنے کا اعلان کیا، جس کا اطلاق آج صبح 8 بجے سے ہو گیا، جس کے تحت دہلی میں ٹرکوں کے داخلے پر پابندی لگائی گئی۔ تاہم ضروری خدمات فراہم کرنے والے تمام LNG CNG الیکٹرک BS6 ڈیزل ٹرکوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ تمام اسکولوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ آج سے کلاسز کو آن لائن موڈ پر منتقل کر دیں۔ آلودگی پر قابو پانے کے قوانین کا اعلان کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ CAQM نے کیا ہے۔ اس نے دہلی حکومت سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ وہ گاڑیوں کے لیے اصولوں کو نافذ کریں اور کلاس 6 سے 9 اور 11 کی کلاسوں کو آن لائن موڈ میں چلائیں۔ سڑکوں پر ٹرکوں کے داخلے اور BS4 گاڑیوں کے چلانے کے علاوہ گریف 4 کے تحت بہت سی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی G20 لیڈروں کی چوٹی کانفرنس کے 19ویں ایڈیشن میں شرکت کے لیے اپنے 3 ملکوں کے دورے کے دوسرے مرحلے میں آج پیر کی صبح برازیل کے ریو ڈی جینیرو میں پہنچے ہیں۔ برازیل میں ہندوستانی سفیر سریش ریڈی کی قیادت میں ہندوستانی مندوبین نے وزیراعظم نریندر مودی کا استقبال کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر آج پیر کی صبح پوسٹ میں وزیراعظم نریندر مودی نے عالمی رہنماؤں کے ساتھ چوٹی کانفرنس اور نتیجہ خیز بات چیت میں شامل ہونے کی اپنی توقع ظاہر کی۔ PM مودی نے کہا، G20 سربراہی اجلاس میں حصہ لینے کے لیے برازیل کے لیے ریو ڈی جینیرو میں اترا ہوں۔ میں مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ چوٹی کانفرنس میں ہونے والی بات چیت اور نتیجہ خیز بات چیت کا منتظر ہوں۔ ملک میں وقف کے قوانین میں زور زبردستی سے ترمیم کی کوششوں کے درمیان اس کے خطرناک نتائج بھی آنا شروع ہو گئے اور چھتیس گڑھ کے وقف بورڈ نے غیر آئینی و غیر قانونی قدم اٹھاتے ہوئے ریاست کی مساجد کے ائماؤں کو ہدایت دی ہے کہ وہ جمعے سے قبل اپنے خطبے کی بورڈ سے جانچ کرائیں۔ مسلمانوں کی عبادت اور مذہبی امور میں راست مداخلت کرتے ہوئے چھتیس گڑھ حکومت کے ماتحت وقف بورڈ نے انتہائی قابل مذمت قدم اٹھاتے ہوئے ریاست کی سبھی مساجد کے متولیان کو ہدایت دی ہے کہ وہ نماز جمعہ سے قبل دیے جانے والے خطبے کی بورڈ سے جانچ کرائیں۔ وقف بورڈ کے چیئرمین سلیم راج نے ریاستی حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دعویٰ کیا، چونکہ مساجد اور درگاہیں وقف بورڈ کے ماتحت ہیں، ایسے میں وہ اس طرح کا حکم جاری کرنے کے مجاز ہیں۔ وقف بورڈ نے اس کے بجائے ائمہ کو ہدایت دی کہ وہ حکومت کی شان میں قصیدے پڑھیں اور اس کی اسکیموں کے بارے میں عوام کو بتائیں۔ اس کے لیے وقف بورڈ نے ریاست کی تمام مساجد کے متولیوں کا واٹس ایپ گروپ تشکیل دیا۔ متولی کو اس گروپ میں جمعے کی تقریر کا موضوع اور اس کی تفصیلات لکھنی ہوگی۔ وقف بورڈ سے مقرر کردہ افسران اس موضوع اور تقریر کی لائن کی جانچ کریں گی۔ منظوری کے بعد ہی ائمہ اس موضوع پر مساجد میں تقریر کر سکیں گے۔ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط؟ آپ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ سپریم کورٹ کی جج BV ناگرتھنا نے عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے میں سیاسی عدم مداخلت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی کردار کو سیاسی نظام کے مفادات یا طاقتور سماجی گروہوں کے تحفظ سے الگ ہونا چاہیے۔ عدلیہ کا کردار صرف ریاستی کارروائیوں کی قانونی حیثیت کو منظم کرنے، انصاف کو یقینی بنانے اور عام آئینی اور قانونی اقدار کا تعین کرنے تک محدود ہونا چاہیے۔ ایک حالیہ عوامی لیکچر میں انہوں نے مزید کہا کہ عدلیہ کی آزادی اور قانون کی بالادستی اس بات کی ضمانت کے لیے مل کر کام کرتے ہیں کہ کسی خاص وقت پر موجود سیاسی دباؤ سے قانون کی حکمرانی ختم نہیں ہوگی۔ قانون کی حکمرانی کی بنیادیں جسے ہم قدر اہمیت نہیں دے سکتے، ججوں کو سیاسی اثر و رسوخ سے الگ کرنا اسی مقصد کو آگے بڑھاتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں تصورات قانون کی حکمرانی کے لیے اہم بنیادیں ہیں۔ شمال مشرقی ریاست منی پور میں حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر CRPF کے ڈائریکٹر جنرل انیش دیال کو فوری طور پر منی پور روانہ کر دیا گیا ہے، جبکہ منی پور کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ مہاراشٹر کے وڈرب میں اپنے طے شدہ انتخابی ریلیوں کو منسوخ کر کے دہلی واپس آ گیا اور جائزہ میٹنگ میں افسروں کو ہدایت دی کہ وہ ریاست میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنائیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ میتئی اور کوکی برادریوں کے درمیان نسلی تنازع کے باعث کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق صورتحال اس وقت مزید بڑھ گئی جب جریبام کے بارگ دریا سے 6 لاپتہ افراد کی لاشیں برآمد ہوئی۔ ان واقعات کے بعد مشتعل مظاہرین نے وزیر اعلیٰ این بیرن سنگھ کی رہائش گاہ پر حملہ کیا اور ان کی رہائش گاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ کانگریس نے منی پور میں تشدد کے تازہ واقعات پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ BJP جان بوجھ کر منی پور کو جلانا چاہتی ہے کیونکہ نفرت اور تقسیم کی سیاست سے اس کو تقویت ملتی ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے وزیراعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ وزیراعظم مودی کی ڈبل انجن والی حکومت میں منی پور نہ تو ایک ہے اور نہ ہی سیف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مئی 2023 سے ہی منی پور ناقابل تصور تکلیف
तकसीम और तशद्दुद से गुजर रहा है, जिसने इस रियासत को लोगों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कोल्हापुर में एक इंतखाबी रैली में कहा है कि कांग्रेस ने कभी मुल्क को अहम नहीं समझा। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की पॉलिसी का नतीजा है कि मुल्क तकसीम हुआ है। कांग्रेस के दौर में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद किसी ने मुल्क की तरफ नई आंख से नहीं देखा। यह नया हिंदुस्तान है, अगर कोई छेड़ता है तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ आज कोल्हापुर जिले में एनडीए इत्तेहाद के उम्मीदवारों के लिए एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला ने कहा कि यह इलेक्शन न सिर्फ इक़्तिदार के लिए बल्कि महाराष्ट्र और मुल्क के लिए भी अहम है। एक तरफ एनडीए इत्तेहाद है और दूसरी तरफ अखलाकियत से आरी इत्तेहाद है। महाविकास आघाड़ी में नौना कुश्ती जारी है। पवार और ठाकरे के दरमियान लड़ाई चल रही है और वो खुद को और मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की मुल्क को धमकी देने की तारीख रही है। अगर कांग्रेस ना होती तो यह मुल्क कभी ना टूटता। अगर मुल्क ना टूटा होता तो आज पाकिस्तान का वजूद ना होता। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए 20 नवंबर को पोलिंग होने वाली है, इसलिए जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आती जा रही है, यहाँ सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंचती जा रही है। इस दरमियान शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाया है। उन्होंने वोटों का धर्म युद्ध वाले बयान पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या ये इलेक्शन कमीशन के मिसाली ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। उद्धव ने कहा कि हमारा हिंदुत्व लोगों के घरों में चूल्हे जलाता है, जबकि बीजेपी का हिंदुत्व इन्हें जलाकर राख कर देता है। इससे हिंदुत्व की मुल्क को कोई ज़रूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने डोंबिवली में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि इन्हें लोकसभा इंतखाबात से पहले अपनी पार्टी के इंतखाबी तराने से जय भवानी जय शिवाजी के लफ्ज़ हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने वोटों का धर्म युद्ध की अपील की है, इसीलिए मैं इंतखाबी कमीशन से पूछता हूं कि क्या धर्म युद्ध आपकी मिसाली ज़ाब्ता अखलाक की डिक्शनरी में फिट बैठता है। बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने झारखंड में जेएमएम ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो रियासत के मदरसों में बांग्लादेशी दरअंदाजों को पनाह दे रही है और इनके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, गैस कनेक्शन और राशन कार्ड और अराजी को यकीनी बना रही है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस लीडर राहुल पर बदहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो दीगर पसमानदा तबकात के चैंपियन बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी अरकान हैं। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात से कल आम आदमी पार्टी को इस वक्त एक धक्का लगा जब सीनियर लीडर और वजीर ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इल्ज़ाम लगाया कि सियासी अज़ाइम ने अवाम के तईं अहद की जगह ले ली। 50 साला लीडर ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को रवाना करदा इस्तीफे में लिखा कि अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने के बजाय हम हमारे सियासी एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। पार्टी की अहम शख्सियत गहलोत ने केजरीवाल पर भी तंज किया और शीश महल जैसे परेशान कुन तनाज़ात का हवाला दिया और कहा कि इससे हर एक को शुबा हो रहा है कि क्या हम अब भी आम आदमी होने में यकीन रखते हैं। बीजेपी ने केजरीवाल की साबिक सरकारी रिहाइशगाह को शीश महल करार दिया था और इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने पुरतइश अशिया और जदीद सहूलियात पर करोड़ों रुपए खर्च किए। आम आदमी पार्टी कायदीन ने कहा कि गहलोत को ईडी तहकीकात का सामना है और इनके पास बीजेपी में शामिल होने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये बीजेपी की गंदी सियासी साजिश है। तिब एक मुक़द्दस पेशा है। किसी भी मरीज़ की तशख़ीस से बढ़कर एक डॉक्टर का अपने मरीज़ के साथ रवैया और सलूक मायने रखता है। मजहब, लब व लहजा, इत्मीनान के साथ मरीज़ की कैफियत की समाअत और बिला तफरीक मजहब, ज़ात पात मरीज़ के साथ खुशअस्लूबी के साथ पेश आना ज़रूरी है, जबकि एक मुस्लिम डॉक्टर पर यह जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। इन ख़यालात का इज़हार जनाब आमिर अली खान, रुकन कानून साज़ कौंसिल और न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत ने इक़रा ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स आई केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स के लिए मुनक़िदा ओरिएंटेशन व तहनीती तकरीब से खिताब के दौरान किया। तकरीब का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से हुआ, जबकि इक़रा ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स आई केयर चैरिटेबल ट्रस्ट डॉक्टर मोहम्मद तंजिल मुनव्वर ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सिर्फ इक़रा ग्रुप्स ऑफ डॉक्टर्स का तारुफ करवाया, बल्कि कार्रवाई भी चलाई। जनाब आमिर अली खान ने अपने सिलसिले खिताब को जारी रखते हुए कहा कि इंसान की ज़िंदगी में डॉक्टर का काफ़ी अहम रोल है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर के नुस्खे के बगैर दवाई के इस्तेमाल से मरीज़ की कैफियत में तब्दीली नहीं होगी और वो सेहतमंद नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब तक हम किसी मुतालिका मर्ज़ के डॉक्टर से रुजू नहीं होते और इलाज नहीं करवाते, उस वक्त तक मर्ज़ ख़त्म नहीं होता। नीट 2024 के ज़रिए MBBS में दाखिले हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को मशवरा देते हुए जनाब आमिर अली खान ने कहा कि शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर डॉक्टर्स को मरीज़ों पर बिला वजह माली बोझ आयद करने से गुरेज करना चाहिए।
तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बताया कि तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक मोटर गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन फीस से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हुकूमत के इस इक़दाम से इस्तेफादा कुनिंदों को हर साल तकरीबन 1 लाख रुपए की बचत होगी। उन्होंने बताया कि रियासत में आज से नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी पर अमल शुरू किया जा रहा है। आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने EV पॉलिसी की तफसीलात से वाकिफ करवाया। पूनम प्रभाकर ने बताया कि जियो 41 के जरिए इस नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को लाया गया है, जो 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगी। 2 व्हीलर्स ऑटो ट्रांसपोर्ट बसों पर 7% टैक्स को इस्तिस्ना दिया गया है। दोनों शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसों को लाया जा रहा है और दिल्ली की तरह हैदराबाद को भी आलूदगी से पाक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल पॉलिसी लाई गई है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो बरक़ी गाड़ियों के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ करें। मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मूसा नदी के पश्त में रहने वाले अवाम काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत ने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के नाम पर गरीब अवाम के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। इस जंग के जरिए हुकूमत मूसा नदी के अतराफ रहने वाले गरीबों के मकानात मुनहदिम करते हुए इन्हें बेघर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मकानात से महरूम होने के खौफ में अब तक 10 अफराद के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से अपोजिशन जमातों के कायदीन को मूसा नदी के अतराफ वाक़े मकानात में शब बसरी करने के चैलेंज को कबूल करते हुए हफ्ते की रात मूसा नदी के पुश्ते में वाक़े एक मकान में शब बसरी की। इतवार की सुबह मरकजी वजीर ने मुकामी अफराद से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और इन्हें तयक़ुन दिया कि इन मकानात को मुनहदिम होने से बचाने की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हुकूमत के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। बाद मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने सवाल किया कि क्या गरीबों के मकानात को मुनहदिम करना ही अवामी हुक्मरानी है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी में गंदे पानी के दाखिले को रोकने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए की ज़रूरत है। उन्होंने मूसी प्रोजेक्ट का DPR इनके हवाले करने का हुकूमत से मुतालबा किया। शहर हैदराबाद में ड्रेनेज निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने इंतहाई अहम फैसला करते हुए तमाम हमा मंजिला इमारतों बिलखुसूस रिहायशी अपार्टमेंट्स में सिल्ट चैम्बर की तामीर का लुज़ूम आयद किया और इन्हें नोटिसें जारी किए ताकि ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। नोटिसों के मुताबिक हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा आउटर रिंग रोड के हुदूद में मैनहोल से फजला खारिज होने और ड्रेनेज के गंदे पानी के सड़कों पर बहने की वजूहात का जायजा लेने गुज़िश्ता 90 दिन के दौरान चलाई गई मुहिम में इस बात की निशानदेही की गई है कि ड्रेनेज में ऐसी अशिया जो पानी में मिल नहीं पाती वो डालने के नतीजे में सड़कों पर ड्रेनेज के पानी का बहाव हो रहा है और इसे रोकने के लिए शहरी हुदूद में हमा मंजिला इमारतों के अलावा दवाखानों, मॉल्स, थिएटर्स, होटल्स के अलावा दीगर ऐसे मुकामात जहाँ से ज़्यादा फजला खारिज होता है, इन मुकामात पर सिल्ट चैम्बर की तामीर के लिए नोटिस जारी की गई है। जिन जायदादों को नोटिस जारी किए इनमें ख़त्म दिसंबर तक अपनी जायदादों में सिल्ट चैम्बर तामीर करने की हिदायत दी गई है। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने छत्तीसगढ़ हुकूमत की जानिब से रियासत में तमाम मसाजिद के खुतबा इकराम पर दबाव डालने और जुम्मे के मौके पर खुतबा देने के लिए वक्फ बोर्ड से अपने खुतबात की जांच कराने के अहकाम की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई कानूनी इख्तियार नहीं कि वो इस तरह के अहकाम सादिर करें। इस तरह के अहकाम दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने छत्तीसगढ़ स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से रियासत की तमाम मसाजिद के मुतवल्लियों को जारी अहकाम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने एक पोस्ट में इन अहकाम की सख्त मजम्मत की और कहा कि छत्तीसगढ़ की BJP हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम वक्फ बोर्ड ये चाहता है कि मसाजिद में खुतबात जुम्मे देने से पहले खतीब हजरात पहले वक्फ बोर्ड से अपने खुतबात की जांच कराए और वक्फ बोर्ड की इजाज़त के बगैर कोई खुतबा ना दे। ओवैसी ने कहा कि आया BJP वाले हमें बताएंगे कि मज़हब इस्लाम क्या है, अब क्या हमें अपने मज़हब पर चलने के लिए BJP वालों से इजाज़त हासिल करनी होगी। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र के अवाम से गुजरात के 2 गुलामों के खिलाफ मुत्तहिद होने, इन दोनों को सबक सिखाने और कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। महाराष्ट्र में दिग्गज के मुकाम पर कांग्रेस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कारकुनों ने सख्त मेहनत की और तेलंगाना में BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव के दौर को ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना में KCR का नाम लेने वाला बाकी नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फूले और BR अम्बेडकर की विरासत से मुतासिर होकर जमहूरियत मुखालिफ ताकतों को शिकस्त देने का मशवरा दिया और कहा कि एक फैसला कुन वोट के साथ महाराष्ट्र के लोग न सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बना सकते हैं बल्कि गुजरात पर मबनी सियासी गलबे को भी रोक सकते हैं। तेलंगाना सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स के बाहुबली गेट यानी मेन इंट्रेंस गेट को हटा दिया गया। हुकूमत के इस इक़दाम पर अवाम ने हैरत का इजहार किया है। सेक्रेटरीट में दाखिले का मेन गेट को नीले रंग की टीन शेड की चादरों से बंद कर दिया गया। मेन गेट को हटाने की तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। रवां साल 4 जून से मेन गेट को इस्तेमाल के लिए बंद कर दिया गया था।
چیف منسٹر ریونت ریڈی واستو مسئلے پر سیکریٹریٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے شمال مشرقی گیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ مین گیٹس کو ہٹانے کی خبروں کی اگرچہ کہ سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ واستو کی اساس پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ مین گیٹ کو گیٹ نمبر 3 پر حسین ساگر کے آخری سرے پر نصب کیا جائے گا۔ دوسری طرف حکومت نے سیکریٹریٹ احاطے میں تلنگانہ تلی کے مجسمے کو نصب کرنے کی تیاریاں تیز کر دی ہے۔